Hello guys, welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello everyone, now in this video I'm going to start from sum number 18. For the previous one, please check the description box, the link will be there. You can also visit our website to get all the chapters from class 11. Okay, so here in sum number 18, out of 3 books on economics, 4 books on political science and 5 books on geography. Okay, so that means here for economics, number of books 3. For political science, here number of books 4, and here for geography, so number of books 5. How many collection can be made if each collection consists of exactly one book on each subject? Okay, so the number of way of selecting exactly one book from 3 economics book, that is 3C1. Clear? Now for political science it will be 4C1 and for geography it will be 5C1. So here the required, okay, so here the required number of ways that one equal to 3C1 into 4C1 into 5C1. Now you know how to break it down. So 3 factorial, 1 factorial, 2 factorial. Here 4 factorial, 1 factorial, 3 factorial, 5 factorial, 1 factorial, 4 factorial. Clear? So 4 factorial, 4 factorial cancel out, 3 factorial, 3 factorial cancel out. Now here 5 factorial, so 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 2 factorial, 2 into 1. So 2 into 1 cancel out, and here your answer is 60. Now next one, sum number 19. Out of 5 corrupt person, 2 honest person, a committee of 3 person is to be found so as to include at least one honest person. In how many ways this can be done? Okay, so here number of corrupt person, that is 5. Okay, that is number of corrupt person, and number of honest person, that one equal to here 2. So 5 corrupt person and 2 honest person, a committee of 3 person. Remember that a committee of 3 person is to be constructed that include at least one honest person. Okay, 3 पर्सन लेके मुझे कमेटी यहाँ पर बिठाना है और उनमें से एक ऑनेस्ट पर्सन होना ही चाहिए. सो दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज. अगर पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 ऑनेस्ट पर्सन रखेंगे और 2 करप्ट पर्सन रखेंगे. ओके, एक ऑनेस्ट पर्सन, 2 करप्ट पर्सन. सो दैट मीन्स हियर 2C1. नाउ दूसरा हम कैसा कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं हम 2 ऑनेस्ट पर्सन एंड 1 करप्ट पर्सन. ओके, 2 ऑनेस्ट पर्सन एंड 1 करप्ट पर्सन. सो जो यहाँ पर मैंने पहले क्या किया, पहले 1 ऑनेस्ट पर्सन रखा है और 2 करप्ट पर्सन रखा है. सो इसके लिए 2C1 और 5C2 होगा. ओके, क्योंकि 2 ऑनेस्ट पर्सन से मैंने एक चूज किया है इसीलिए 2C1, और 5 करप्ट पर्सन से मैंने 2 चूज किया है इसलिए 5C2. बट सेकेंड केस में 2 ऑनेस्ट पर्सन है. ओके, इसका मतलब 2C2, दोनों में से दोनों को मैंने चूज कर लिया. इसका मतलब एक रिमेनिंग है क्योंकि 3 लेके मुझे कमेटी बिठाना है. सो यहाँ पर 5C1 होगा. अगर टोटल नंबर ऑफ वेज हम यहाँ पर हिसाब करेंगे, सो नंबर ऑफ वेज यहाँ पर होगा, यहाँ पर 2C1 इंटू 5C2 प्लस 2C2 इंटू 5C1. ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, देन 1 फैक्टोरियल, देन अगेन 1 फैक्टोरियल. यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, इट्स 1. एक बार लिख दीजिए कि 2C2 इसका वैल्यू 1 ही होता है, और 5C1 का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल. ओके, सो यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 5 इंटू 4, फिर 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर ओनली 5 क्योंकि 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा.
ओके, सो इसका मतलब 20 प्लस 5 एंड दैट वन इक्वल टू 25. So 25 is your final answer. Okay, now let's move on to next problem. Sum number 20. A sports team of 11 students is to be constituted choosing at least 5 from class 11. Okay, class 11 से मुझे 5 choose करना है. Total number of students 11 in the sports team. Okay, and at least 5 from class 12. अच्छा, class 12 में से भी मुझे 5 लेना है. If there are 20 students in each of the class. Okay, अब क्लास 11 में 20 स्टूडेंट है, इनमें से मुझे 5 लेना है. क्लास 12 में भी 20 स्टूडेंट है, इनमें से भी मुझे 5 चूज करना है. सो 5 5 10 हो गया. ओके, नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी कंस्टिट्यूटेड. ओके, तो यहाँ पर मुझे पहले देखना है 20 स्टूडेंट क्लास 11 में है, 20 स्टूडेंट क्लास 12 में है. ओके, इसका मतलब अगर मैंने 5 स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, 5 स्टूडेंट क्लास 11 से ले लिया और 6 स्टूडेंट मैंने क्लास 12 से ले लिया. सो फर्स्ट कंडीशन होगा 5 स्टूडेंट क्लास 11 से, इसका मतलब 20C5 और 6 स्टूडेंट क्लास 12 से, सो 20C6 आपका हो गया फर्स्ट कंडीशन. नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा? नेक्स्ट कंडीशन मैंने क्लास 11 से मैंने 6 स्टूडेंट उठा लिया, सो 20C6 और 12 से मैंने 5 स्टूडेंट ले लिया, सो 20C5. अब दोनों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, सो दोनों को ऐड करने से यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, सो 20C5 इंटू 20C6. अब इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने से आपका आंसर आ जाएगा. आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं. ओके, सो दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट, सम नंबर 21. In sum number 21, in a small village, there are 87 families. Okay, 87 families, of which 52 families have almost 2 children. In a rural development program, 20 families are to be chosen for assistance, of which at least 18 families must have at most 2 children. In how many ways we can choose to meet? Okay, so total number of families कितना है? 87. Okay, now the given number of families have at most 2 children, that is 52. So 20 families are to be chosen. मुझे 20 family यहाँ से choose करना है. At least 18 families must have at most 2 children. Okay, इसका 20 family choose करना है, उनमें से at least 18 family में 2 children होना ही चाहिए. So 18 family which have at most 2 children and 2 families from the remaining. Okay, इसका मतलब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? अब 52 जो टोटल फैमिली है जिनमें से 2 चिल्ड्रन है, इनमें से हम 18 फैमिली चूज कर सकते हैं और बाकी जो 2 फैमिली मुझे चूज करना है, बाकी 2 फैमिली रिमेनिंग 35 से हम चूज करेंगे. 35 कहां से आया? 87 माइनस 52, दैट वन इक्वल टू 35. क्लियर? 52 फैमिली है जिनमें से 2 चिल्ड्रन है हर एक फैमिली में, तो उनमें से हम 18 फैमिली चूज कर चुके हैं. अब बाकी 2 फैमिली चूज करना है, बाकी 2 फैमिली जो रिमेनिंग फैमिली से 35, उनमें से मैंने चूज कर लिया. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है? नेक्स्ट कंडीशन हो सकता है हम जो 52 फैमिली है वहां से हम 19 चूज करेंगे. ओके, सो 52C19 और कोई भी एक फैमिली को हम चूज करेंगे 35 से. दैट इज द सेकेंड कंडीशन. अब थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है? थर्ड कंडीशन हो सकता है हम 20 फैमिली 50 से ही चूज कर लें, क्योंकि एटलीस्ट 18 मुझे यहाँ पर बोला है. इसका मतलब 19 भी हो सकता है, 20 भी. 18 से कम नहीं होगा, 18 से ज्यादा हो सकता है. अब पूरा ही 20 मैंने चूज कर लिया, इसलिए रिमेनिंग फैमिली से हम कोई भी फैमिली यहाँ पर चूज नहीं करेंगे. अब इसको हम ऐड कर देंगे. ओके, तीनों कंडीशन यहाँ पर हो गया. क्लियर? अब इसका हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे. अब वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, मोस्ट प्रोबेबली यही आपका आंसर है. ओके, सो दिस इज योर आंसर. सो वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है.
चलिए, नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 22. So here in sum number 22, there are 6 boys, 3 girls in our class. Okay, 3 girls, 6 boys. A committee of 5 is to be selected. Committee जो बनाना है वहां पर 5 होना चाहिए. First, number 1, what is the number of ways if there are 3 boys and 2 girls on the committee? अच्छा, 3 boys होना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना था? 6. इसका मतलब 6 से हम 3 चूज करेंगे और 2 गर्ल्स, इसका मतलब 3 से हम 2 चूज करेंगे. सो आंसर हो गया. इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, सॉरी, इट्स 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड देन 1 फैक्टोरियल. सो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट. यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 5, 6 इंटू 5 इंटू 4, फिर उसके बाद 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 1/2. ओके, अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 हो गया आपका, सो 60. सो फर्स्ट आंसर 60. नाउ नंबर 2, what is the number of ways if there is at least one girl on the committee? Okay, एक गर्ल होना चाहिए, एटलीस्ट वन गर्ल. और 5 स्टूडेंट लेके हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 स्टूडेंट लेके हम यहाँ पर इसको एक कमिटी बिठाएंगे जिनमें से सिर्फ एक गर्ल होना चाहिए. ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले ऐसे उठाएंगे यहाँ पर 3C1, ओके, और यहाँ पर 6C4 लेंगे क्योंकि 4 + 1 फिर 5 हो जाएगा. फिर दूसरे में हम क्या करेंगे, 3C2 लेंगे और यहाँ पर 6C3 करेंगे. फिर तीसरे में हम क्या करेंगे, 3C3 लेंगे और यहाँ पर 6C और यहाँ पर 2 होगा, 6C2. ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके यहाँ से आंसर निकालेंगे. सो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. यहाँ पर 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. यहाँ पर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है. 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. फिर यहाँ पर हम प्लस देंगे, 3C3 1 होता है, सो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल. सो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर आपके पास 3 इंटू 2 फैक्टोरियल है, सो 2 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो गया. और यहाँ पर 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, नीचे 2 आ जाएगा. यहाँ पर 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है यहाँ पर 6 इंटू 5 इंटू 4, फिर 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, नीचे 2 आ जाएगा. और यहाँ पर भी 6 इंटू 5 4 कैंसिल आउट, नीचे 2 आ जाएगा. सो 2 से हम इसको कटेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा. 2 से इसको कटेंगे, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3. सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 इंटू 5 15, यहाँ पर 20, सो 60 और यहाँ पर 15. सो 15 60 30. ओके, सो इसका मतलब यहाँ पर हो गया आपके पास, अच्छा यहाँ पर भी एक 3 है. ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा 45 प्लस यहाँ पर 75. ओके, 45 प्लस यहाँ पर 75 हो गया, सो 0 एंड इट्स 120. सो 120 is your final answer. Now next one, sum number 23. A student has to answer 10 questions. Okay, 10 questions in a part. Sorry, chosen at least 4 questions from each part, each of the parts A and B. Okay, इसका मतलब A पार्ट से एटलीस्ट 4 करना है और B पार्ट से भी एटलीस्ट 4 करना है. If there are 6 questions in part A, total number of question यहाँ पर 6 है, and 7 question in part B, then how many ways can the student choose 10 question? Okay, so यहाँ पर देखिए पहले पार्ट में यहाँ पर 6 है. ओके, सो 6 में से यहाँ पर हम 4 चूज कर सकते हैं, सो 6C4. और जो यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन से हम यहाँ पर 6 चूज कर दे, 6 + 4 10 हो गया. अब उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 6 है, 6 में से 6 अटेंड करेंगे और यहाँ पर 7 में से 4 अटेंड करेंगे. ओके, सो 6C6 इंटू 7C4 हो गया. और क्या कर सकते हैं, हम पहले वाला जो पार्ट है वहां से 5 चूज कर सकते हैं और दूसरा वाला जो पार्ट है वहां से भी 5 चूज कर सकते हैं. सो आपका आंसर हो गया. अब इसको हम निकालेंगे यहाँ पर 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल.
यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सो 6 फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब 7 का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 रह जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 7 को लिखेंगे 7 इंटू 6, फिर 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देंगे। और जो 6 फैक्टोरियल इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 5, फिर 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे। और 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 कर देंगे। ओके, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दिस वन, ये तो यहाँ पर प्लस साइन था, सॉरी, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल था। तो 7 को हम लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5, फिर 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 3 इंटू 2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6 फैक्टोरियल को यहाँ पर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, और 7 को 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, और नीचे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 2 से 6 कटेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 6 कटेंगे, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 6 पूरा काट देंगे। सो 7 इंटू 5, देन यहाँ पर सॉरी 21, 21 इंटू 5, सो 5 एंड देन 10, 105 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर 7 इंटू 5, सो 35, और लास्ट में जो यहाँ पर है 7 इंटू 3, इट्स 21, सो 6 एंड 126। सो आपका आंसर हो जाएगा 266। ओके, 266, दैट इज योर फाइनल आंसर। Now next one, sum number 24. A box contain 5 different red and 6 different white ball. Okay, 5 red ball and 6 white balls. In how many ways can 6 ball be selected so that there are at least 2 balls of each color? Okay, 2 बॉल each color होना चाहिए। So यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले रेड बॉल से हम 2 चूज करेंगे। ओके, और जो व्हाइट बॉल मेरे पास है वहां से हम 4 चूज करेंगे। सो 4 प्लस 2 6 हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर टोटल 6 बॉल चूज करना है। क्लियर? सो 5 से मैंने 2 चूज कर लिया, 6 से मैंने 4 चूज कर लिया। क्लियर हो गया? अब इसको उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पर 5 से हम यहाँ पर 4 चूज करेंगे, और 6 से हम यहाँ पर 2 चूज करेंगे। ओके, डन। नाउ द थर्ड कंडीशन, 5 से हम 3 चूज करेंगे, और 6 से भी हम 3 चूज करेंगे। 3 3 6 हो गया। चलिए, अब यहाँ पर 5c2, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 5c4, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। 6c2, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ओके, हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे भी 2 आ जाएगा। अब 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। सो यहाँ पर हम करेंगे 5, और नीचे 4 फैक्टोरियल था, कैंसिल आउट हो जाएगा, सो नीचे 1 आ जाएगा। यहाँ पर 6 इंटू 5 करेंगे, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, नीचे 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी हम करेंगे यहाँ पर 5, सो 5 इंटू 4, फिर 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, नीचे 2 रह जाएगा। यहाँ पर करेंगे 6, सो 6 करेंगे यहाँ पर 6 इंटू 5, देन इंटू 4, एक 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और दूसरा 3 फैक्टोरियल के लिए 3 इंटू 2 कर देंगे। सो 3 इंटू 2 6 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 कैंसिल करेंगे इससे, सो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 3 लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। सो 3 5, इट्स 15, 5 टू 10, सो 150 हो गया यहाँ पर। यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25, 25 3 जा 75। ओके, और यहाँ पर हम 200 लिख देंगे। क्लियर? सो आपका आंसर यहाँ पर हो गया 425। Now the last one, sum number 25. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. So here 25.1. There are 12 points in a plane of which 5 are collinear. These points are joined in pairs. Find the number of straight line formed. Okay.
अब यहाँ पर देखिए देयर आर 12 पॉइंट, टोटल पॉइंट कितना है 12 पॉइंट्स इन द प्लेन एंड देयर द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज देन डेफिनेटली 12C2, क्योंकि 2 पॉइंट लेके हम एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 पॉइंट लेके. ओके, सो दैट्स व्हाई 12C2. As exactly one line is drawn through 2 points, since 5 points out of 12 are collinear. यहाँ पर लिखा है 5 points are collinear out of 12. Okay, so these points from one line instead of 5C2 lines. Okay, 5C2 lines होगी यहाँ पर. So hence the number of lines are decreased by 5C2 minus 1. Number of lines decreased by 5C2, then यहाँ पर -1 हो गया. So यहाँ पर total number of lines हो गया 12C2 minus then 5C2 minus 1. So that means here 12C2 minus 5C2 plus 1. अब 12C2 का मतलब हो गया यहाँ पर 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल. 5C2 का मतलब 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर 1. 12 फैक्टोरियल मतलब 2 into 11, 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, नीचे 2 रह जाएगा. यहाँ पर 5 into 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ पर भी 2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 6 होगा. सो 66 minus 10 plus 1, that means 56 plus 1, so 57. That is your first answer. Okay, now the next part 2. How many diagonals are there in a polygon with n side? Okay, total number of side है यहाँ पर n. Now the number of diagonals, that one equal to number of diagonals, that one equal to total number of straight lines minus number of sides. Okay, total number of straight lines and number of sides. So total number of straight line कितना होगा nc2 और वहां से हम n subtract करेंगे. अब nc2 का मतलब हो गया n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, n minus 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर सिर्फ n रह गया. क्लियर? अब n फैक्टोरियल का मतलब होता है n देन n minus 1 और उसके बाद होता है n minus 2 फैक्टोरियल जो कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे सिर्फ 2 into 1. ओके, सो यहाँ पर हो गया n into n minus 1 by 2 minus n. क्लियर? अब यहाँ से हम n कॉमन लेंगे, n कॉमन लेने के बाद यहाँ पर n minus 1 by 2 minus 1 हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा n into n minus 3 by 2. That is your final answer.